Good morning, friends. Today we are discussing about our first topic of read syllabus, that is Unit 1, whole number. Whole number up to 1 crore. हमें 1 करोड़ तक के नंबर को रीड करना आना चाहिए इन इंडियन सिस्टम एंड इन इंटरनेशनल सिस्टम बोथ. सो व्हाट इज इंडियन सिस्टम and international system? In Indian system we discuss about 1000, 10,000, lakh, crore, 10 lakh, crore. But in international system we discuss about 1000, million. After 1000 we comes to million, 10 million, billion, trillion. We read numbers in this one, but our topic is only up to 1 crore. 1 crore, that means up to 10 millions we have to read. So in Indian system, if we are taking numbers, suppose like this, how we read these numbers? In Indian system and international system, we place comma first of all after 3 digit from right side, then after 2 digit. And in international system we place comma first of all after 3 digit, then also after 3 digit. This is the main difference between Indian system and international system. Indian system और international system में difference क्या है कि हम commas से ही हम read करते हैं ना, 1000, then lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. So in Indian system we place comma first of all बाय आफ्टर 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट के बाद हम कोमास प्लेस करते हैं. बट इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 डिजिट के बाद ही कोमास लगाते हैं. सो हम इन नंबर्स को कैसे रीड करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट रिप्रेजेंट्स 1000, देन दिस वन इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 and lakh. This number is our 10 lakh. This number is our 10 lakh. But in international system, how we read this number? First digit, 3 digit, this one is 1000, and after 1000 it comes to million. So this one is our 1000 million, and this is 1. So 1 million. Directly this question came कि 1 million is equal to how many lakh? That is 10 lakh. If we are increasing one more zero, then these numbers become so same. First of all after 3 digit, then after 2, then also after 2 in Indian system, and international system after 3 digit, then after 3 digit. So this one becomes our 1 crore. This one become our 1 crore, and this one is 3000, and this one is for million, and this one is 10 million. 10 million. So in this way we have to read the numbers. Directly numbers को read करना भी आ जाता है कि numbers हमें given होते हैं तो इस form को write in words this number. Either 1 million is equal to 10 lakh, 10 million is equal to 1 crore. इस टाइप में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. नेक्स्ट टॉपिक इज अवर प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जो हम कल लास्ट वीडियो में हमारी कर चुके, वो आप देख सकते हैं. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं. वोल नंबर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन. कंपैरिजन में क्या करते हैं हम? नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी आ सकता है एग्जाम में, या डायरेक्टली 2 नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं. Like we are suppose we are taking this number line, we know that this one is 0 mid, and here we are taking positive numbers, +1, +2 in this direction, and our right hand side we are taking -1, -2. We know that as we are increasing, going in this direction, numbers are increasing, and when we are moving in this direction, numbers are decreasing. number क्या होते जाते हैं? small होते जाते हैं. So -2 and 1, which number is greater? Obviously 1. 1 is greater than -1. 2, 3, which number is greater? 3 is greater. If we are placing minus sign,
अगर इन्हीं नंबर्स पे हम माइनस साइन पुट कर देते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. नाउ -2 इज ग्रेटर देन -3. ये देखिए 0 इज ग्रेटर देन फ्रॉम एवरी नेगेटिव नंबर. आप कोई भी नेगेटिव ले लीजिए. -100 सपोज वी आर राइटिंग, -100 इज लेस देन 0. 0 हर नेगेटिव नंबर से बड़ा है. अंडरस्टैंड. सो इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. आइदर असेंडिंग, राइट द नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग. आप हमें 4 से या 5 नंबर्स गिवन होंगे, उन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए. इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं. आफ्टर दैट ऑपरेशंस में हम क्या देखते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन. ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एज इट इज आते हैं कि इन नंबर्स को ऐड कीजिए, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए. वो आके हम क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है कि किस टाइप से वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन के सम्स देता है. सो दीज आर द 4 टॉपिक्स विच आर इन अवर यूनिट 1, होल नंबर्स अप टू 1 crore, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, कंपैरिजन एंड ऑपरेशंस. नाउ कम टू अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. Now, first question is same. This question is from operations, plus minus addition. Find the value of -1 plus 2 -3 plus 4 -5 plus 6 -7 plus up to 1000. We are going. So देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, प्लस माइनस का ही है, बट क्वेश्चंस को थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया है. सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग 2 digit. 2 minus 1. 2 minus 1 is, if we are taking these two number, our answer is +1. If we are taking these two number, our answer is +1. 4 minus 3 is +1. 6 minus 5 is +1. So total how many terms we have? 1000 terms है हमारे पास, जिसमें से 1000 में से हम 2 term को अगर ले रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1 1 1 1 1. दैट मीन्स थाउजेंड्स का क्या हो जाएगा, हाफ टर्म्स. तो क्या हो रही है, हमें 2 टर्म्स इंक्लूड होके हमें 1 दे रही है. तो 1000 की 2 टर्म्स को अगर हमने अरेंज किया तो कितनी टर्म बच गई हमारे पास, 500. आवर आंसर इज 500. ये हमारा सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है एज इट इज. नेक्स्ट, डिवाइड दिस व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 11. इस नंबर को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन आ गया. क्वेश्चन तो हमारे टॉपिक से ही है, बट फाइंड द सम ऑफ. डिवीजन के बाद सम फाइंड आउट कीजिए, रिमाइंडर एंड क्वोशंट. जब हम डिवाइड करते हैं, व्हेन वी हैव टू डिवाइड बाय 11, वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 11. 11 1 से 11 0. आफ्टर दैट वी आर टेकिंग 0. दिस वन इज लेस देन, ये 0 11 से लेस है, सो वी आर टेकिंग 1 मोर नंबर. जब हम एक और नंबर लेते हैं तो यहाँ क्या लगाते हैं, 0. अभी भी ये क्या है, 0 0 1, तो ये नंबर 1 ही है, 11 से तो लेस है. सो हम नेक्स्ट एक और नंबर ऊपर से लेंगे. जब हम एक और जितने नंबर हम एक्स्ट्रा लेते हैं उसके लिए हमें क्या देनी पड़ती है, 0. सो पुट हेयर वी आर टेकिंग 1 11 11 1 जा 11. So 11 minus 11 0. Now only one number left, that is 1. Taking 1 here. अब आगे और नंबर है नहीं तो ये डिवीजन यहीं स्टॉप हो जाएगी. दिस वन इज अवर क्वोशंट, ये क्वोशंट होता है, एंड दिस वन इज अवर रिमाइंडर. अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला, डिवाइड कीजिए. डिवाइड के बाद फाइंड द सम ऑफ. हमें इनको क्या करना है, सम किसका, सम ऑफ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. अवर क्वोशंट इज 1 0 0 1 प्लस रिमाइंडर इज 1. रिमाइंडर क्या बचा है हमारा, 1. सो अवर आंसर इज 1 0 0 2 when divided by this. I think some mistake is here. When we are dividing 1, first of all 11 1 ja, then we are taking 0. This one is less, so we place 0. Then another number, we have taken 2 number extra, so placing 2 zeros. 1 1 ja, next number is 1. Now if we are leaving number this one as it is, then we have to put here 0. Then we have to put here 0. This one is the rule of division कि जब भी हम ऊपर से कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ 1 लिया, वो हमारे डिवाइजर से क्या है, लेस, तो उसके लिए हमें एक एज इट इज 0 छोड़नी पड़ती है. Understand? So if we put here 0, now we have to add 1, so our answer is this one.
और आंसर विल बी ऑप्शन ए। आंसर विल बी ऑप्शन ए। ये डिवीजन का रूल है, इसमें बहुत बार मिस्टेक होती है, तो ये ध्यान रखिएगा एक बार। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ these so that we get the answer this one 19,999. what should be subtracted? हम इस प्रोडक्ट में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? so just make to the product of these number 201 when we product these numbers. so when we multiply by 1, so 102, place this cross sign, then when we multiply 0, then we get 0. now we have to place 2 cross signs. when we multiply, number becomes double 2, so our sum is 0502. so what should be subtracted? इस प्रोडक्ट में से 2050 इस प्रोडक्ट में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? वी गेट आंसर दिस। आप इसी नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 9, सो वी गेट 3 0 14 माइनस 9 5 9 माइनस 9 0 सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। सपोज अगर हम आपको बोले कि 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें आंसर 3 मिले, सो वी पुट हेयर 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 3 मिले, तो आप डायरेक्ट अगर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी हमारे पास 2 आ रहा है, तो एज इट इज हम इनके प्रोडक्ट में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी। आइदर हम ये कर सकते हैं कि प्रोडक्ट में से सभी ऑप्शंस को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये नंबर जिसमें हमें ये नंबर मिलता है वो हमारा आंसर होगा। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10,000 10 ones 10 tens equals to किसके इक्वल होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 10, वी आर राइटिंग 10,000, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 वी गेट 10,000। 10 ones 10 into ones means 1, we are multiplying, so we get 10, and 10 tens we are multiplying by 10, so we get 100, plus sign in between them, so add these numbers 0 1 1 0 1, so this one is our answer is option 10110, option A. This question came from CTET 2016. Next one is which one is true? Which one is true? Same, this question came from comparison. So for number line we are taking, we know that in negative में जितना बड़ा नंबर उतना ही वो क्या होगा? छोटा। तो which one is true? 16 और 15 में से कौन सा बड़ा है? 16 और 15 में से कौन सा बड़ा है? 16। बट जब हम इस पे नेगेटिव साइन लगाते हैं तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? स्मॉलर नंबर बिकम ग्रेटर। तो ये तो हमारा फॉल्स है। सेम एज इट इज 16 बड़ा या 20 इज ग्रेटर। एज जैसे ही हमने उस पर नेगेटिव साइन लगाया कौन सा बड़ा हो जाएगा? 16। सो साइन इज लेस, साइन लेस का लगा रखा तो ये भी गलत है। दिस इज नॉट 1 और -16। वी नो दैट नेगेटिव में जो नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव से क्या होगा? लेस होगा। नाउ हेयर 16 ग्रेटर है या 3? 16 इज ग्रेटर। जैसे ही हम उस पर नेगेटिव साइन पुट करते हैं दोनों पे तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन डी। सर इज ऑप्शन। ये भी रीड 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस सेम ही रिपीट होते हैं। कौन सा बेसिक अगर हमारा क्लियर, जैसे हमें पता है कि कंपैरिजन में 2 ही टाइप से क्वेश्चन आएंगे, या तो नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या फिर आप नंबर लाइन पे डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही, ये जो होता है हमारा हिंदी में सेम एज इट इज है, ये वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? नंबर्स हमें एज इट इज लगते हैं सभी, तो एग्जाम में हम क्या करेंगे? नंबर का जितना पोर्शन हमें सेम लगता है उसको आप क्या कर दीजिए? एक बार हटा दीजिए। 4203 4203 4203 4। आप इस नंबर्स को क्या कर दीजिए? सोचिए कि यहाँ है ही नहीं,
माइंड में सोचना, ये ऐसा नहीं है कि है नहीं, नंबर तो है। नाउ अब नंबर क्या बचता है, 567, 657, 756, 600। इन नंबर्स को तो इजीली हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग मीन्स पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। सो सबसे पहले सबसे छोटा 500, 600, 700, 6, सबसे छोटा कौन सा है 500। तो ऑप्शन 1 जहां है वही हमारा आंसर होगा। इनको अरेंज करना है जो पहले नंबर पे है। सो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इन दोनों में ही फर्स्ट नंबर पे हमारा फर्स्ट गिवन है। उसके बाद 500 के बाद 600, 600, इन दोनों में से कोई एक पहले आएगा। 657 बड़ा है, छोटा है, या 675? 657 छोटा है, तो सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड, फर्स्ट यहाँ भी सेम दे रखा है। इन दोनों में कोई आंसर होगा फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे आएगा हमारा। देन ऑब्वियस ये थर्ड जो होगा ये हमारा 600 की लाइन में ही है, तो ये आएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। सो दिस वन इज फोर्थ। सो आंसर इज ऑप्शन सी, 756 सबसे बड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जितना पोर्शन नंबर्स का हमें सेम लगता है उसको आप सोचिए कि ये नंबर है ही नहीं, उसके बाद जो पोर्शन बचता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। नेक्स्ट इज 1 करोड़ इज इक्वल टू, ये हमारा PS टेट 2018 का क्वेश्चन है। अभी हमने डिस्कस किया था 1 करोड़ is equal to 1 crore. First of all, we are writing 1 crore. Place commas after three digits. This one is million. 1 crore is equal to 10 million, 100 lakh, 10,000, all of these. इन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। 1 करोड़, दिस वन इज इंटरनेशनल सिस्टम। नाउ सेम नंबर इफ वी आर राइटिंग इन इंटरनेशनल सिस्टम, दिस वन इज इंटरनेशनल। इंडियन सिस्टम वी आर पुटिंग कॉमास आफ्टर 3, then 2 and then 2. This one is in Indian system, this is 1 crore, but in international system this one is 1000 million. How many million? 10 million. That means option A is right. After that 100 lakh, in Indian system this one is 100 lakh. 1 lakh containing how many zeros? 1 lakh containing 5 zeros. So ये किसके इक्वल हो गया? 5 zeros। अगर हम 1 lakh को हमने एक साथ कर दिया तो ये पीछे क्या बचता है? 100 lakh। 1 करोड़ और किसके इक्वल होता है? 100 lakh। Now thousands, again we are writing if this one is our 1 crore. How many? This one is discussing about 1000 na, so for 1000 we are taking these 3 zeros, and after that how many zeros left? 4 zeros. Same 4 zeros are here. So 1 crore is equal to 10 million, 100 lakhs, 10,000 thousands. So answer is option D, all of the above. ये क्वेश्चन आया हमारा 2018 में PS टेट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ वी डिवाइड, सेम डिवीजन आ गया, डिवीजन है थोड़ा सा मॉडिफाई करके डिवीजन को दिया है। डिवाइड 999, डिवाइड पुट डिवीजन सिंबल, किससे डिवाइड करना है? बाय 0.009। अब सबसे पहले डेसिमल सिंबल को हम डील करते हैं। डिवाइड, डेसिमल को हटा के अगर हम नंबर राइट करते हैं नीचे कितनी जीरो आएगी? 3, बिकॉज डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1 2 3, 3 नंबर है तो आफ्टर 3 0। नाउ डिवीजन को सोल्व करने का मेथड क्या है? चेंज डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लाई, और उससे नेक्स्ट का नंबर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल बाय 9। अब तो इजी है, कट कर दीजिए इसको। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा। सो आंसर इज 1 1 1, आफ्टर दैट 3 zeros. दिस वन इज अवर ऑप्शन बी। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। सेम क्वेश्चंस अगर हम सोचें कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन की है, क्वेश्चन तो वही है, बट उन क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाई करके दिया है। बट क्वेश्चन आते हैं हमेशा इसी फॉर्म में, हर बार सेम टाइप से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन पेपर अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। सो next time we will discuss about our second topic of read syllabus. After that we will discuss questions which are from previous year question papers, that will be very helpful for you in your upcoming exam. If you like my video, please like, share and subscribe my video. Thank you. Have a nice day.